बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 8 and the period is the English language text period. Today we will review the unit number 9 argument. In previous class I have completed unit number 12 persuasive speeches. So student, what does argument mean? Argument means disagreement. Disagreement or difference of opinion. Difference of opinion. So student, what is an argument? In academic writing, an argument is usually a main idea. Means usually a main idea, often called a claim or the thesis statement, backed up with the evidence that supports the idea. Means argument is a piece of sequence of reasoning. So what is an argument? What is an argument? Arguments in academic writing or an argument is usually a main idea, often called a claim or thesis statement. And you can say an argument is a piece. An argument is a piece or sequence of reasoning. Sequence of reasoning. This is called an argument. Next is, what is expository writing? Expository writing provides ideas, supporting details or evidence about the topic to the readers. And this type of writing can include essays, newspapers, magazines articles, instructions manuals or encyclopedia articles, etc. Let's start today. Page number 206. Arguments are usually featured in expository writing. Expository writing provides ideas, supporting details and the evidence about the topic to readers or the listeners. यानी expository writing जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? आइडियाज, सपोर्टिंग डिटेल्स और द एविडेंस. किसके ये तमाम चीज़ें किसके प्रोवाइड कर रहे हैं? टॉपिक का वो पूरा बैकअप दे रहा है, तभी जो रीडर्स है वो उससे एग्री करेगा. और अगर आप अपने रीडर को कन्वेंस कर लोगे कि वो आपकी आइडिया को और आपके एविडेंस को वो समझ सके और एक्सेप्ट करे. रीडर्स और द लिसनर्स कैन डिसाइडेड वेदर दे एग्री विद व्यू ऑफ द राइटर. यानी कि अब ये लिसनर्स पर और रीडर्स पर जो नहीं है वो उन्हें डिसाइड करना है कि वो एग्री हो रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बता रहे हैं
Argument use logical reasoning and the effective language to persuade the readers to think about the topic and form an opinion. आपका जो रीडर है, आपका जो लिसनर्स है, उसे आपने जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो उसे आपने कन्वेंस करना है, परसुएट करना है कि जो आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो कि उसे वो कंसीडर करे, उसे थिंक करे, उसे सोचे कि जो आप उसे बता रहे हो वो सही है या नहीं है, वो इस यानी वो उस पॉइंट पर आ जाए कि वो आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हो जाए या आप उसे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वेंस हो जाए. Strong argument express a particular point of view in relation to a topic and convince readers or listeners to take stand on the issue. A personal attack is never included in a critical argument. एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर आपका कोई भी पर्सनल आर्गुमेंट या पर्सनल व्यूज नहीं होते. दिस इज कॉल्ड अ फाइट. अगर एक आर्गुमेंट के अंदर आपके पर्सनल व्यूज आ जाते हैं, पर्सनल थॉट आ जाती हैं, तो दिस कॉल्ड अ फाइट, नॉट एन आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट यहाँ पे वो कह रहे हैं अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और a strong argument express a particular point of view in a relation to a topic and convince readers or listeners to take a stand on the topic. A personal attack is never included in the credible argument. Argument become less effective, यानी वो यहाँ पे कह रहे हैं वो less effective हो जाएगा. कौन सा argument? एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लेस इफेक्टिव हो जाएगा व्हेन दे इंक्लूड अ पर्सनल बिलीफ, जहाँ पे आपके पर्सनल बिलीव्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपके पर्सनल व्यूज आ रहे हैं और इमोशनल स्टेटमेंट दैट आर नॉट सपोर्टेड विद द फैक्ट्स. तो फिर वो फैक्ट्स को हाईलाइट नहीं कर रहा, वहाँ पे तो आपके पर्सनल व्यूज हैं, वो तो आपकी वो दिस इज कॉल्ड अ फैक्ट, वो तो आपकी पर्सनल बिलीव हैं. तो ये पर्सनल बिलीव, आपके पर्सनल व्यूज आपके आर्गुमेंट के अंदर नहीं होने चाहिए. However, argument can appeal to the readers or the listeners' fears, such as the fear of being ostracized. अगर यहाँ पर कहा जा रहा है however argument can appeals मीन अट्रैक्ट कर रहा है रीडर्स के खौफ को कि वो अपने खौफ को बाइकआउट कर दें, ऑब्सेसाइज कर दें, उस खौफ को ख़त्म कर दें. नेक्स्ट वन इज द एक्सपोजिटरी राइटिंग कैन बी प्रेजेंटेड इन अ 3 ways. एक्सपोजिटरी writing. What is expository writing? Expository writing provide ideas, details or the supporting details or the evidence about the topic to the listener, and this can be presented in 3 ways. First one is through an argument. Second one is through a discussion. Third one is through a challenge. Through an argument, the writers argue from the particular point of view to persuade readers. Persuade, convince the readers to agree with the argument presented or at least to understand the writer's point of view. वही बात बताई जा रही है कि आपने अपने आर्गुमेंट में अपने रीडर्स को परसुएट करना है, उन्हें कन्विंस करना है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू आप बता रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू आप पेश कर रहे हैं उनके सामने, दिस इज राइट. सेकेंड वर्ड थ्रू अ डिस्कशन, वही बात है कि अब ये डिस्कस कर रहे हैं. द राइटर्स ऑफर्स बोथ, द राइटर ऑफर्स बोथ, यानी फेवर और द डिसफेवर, दोनों साइड्स वो बता रहे हैं टू एन आर्गुमेंट सो दैट रीडर्स कैन मेक अप देयर माइंड ऑन द टॉपिक. अब जो भी उनके व्यूज हैं, जो फेवर कर रहे हैं वो अपने व्यूज देंगे और जो डिसफेवर कर रहे हैं वो भी अपने व्यूज देंगे. तो ये राइटर ने दोनों चॉइसेस रख दिए हैं, वो फेवर की भी यानी एक एग्री कर रहा है और दूसरा डिसएग्री कर रहा है. थर्ड वन इज द थ्रू अ चैलेंज. द राइटर क्वेश्चंस, अभी राइटर किस पे क्वेश्चन करता है? द राइटर्स क्वेश्चंस द वैलिडिटी ऑफ द एन अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चंस किस पे कर रहा है? एन अदर पर्सनस ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि उसकी वैलिडिटी यानी कि उसके सही क्वेश्चन पर वो क्वेश्चन कर रहा है, तभी तो वो आर्गुमेंट होगा ना. मेक अ आर्गुमेंट नॉट अ क्वेश्चन. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं द राइटर क्वेश्चंस द वैलिडिटी ऑफ द एन अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू पर वो क्या करेगा? सवाल उठाएगा. नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट. स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट.
First one is the thesis. Second one is the an argument. And third one is the reiterations. Reiterations. What is thesis? Student, the first starting lines make a argument, not a questions. So the in starting lines you have to convince or you have to gain the attraction of the readers. आपने attractions यानी कि उनके अपने readers की attentions को catch करना है, उनको अपने तरफ divert करना है कि जो point of view आप बता रहे हैं this is right. So the thesis क्या है? An opening paragraph stating the writer's point of view following by the brief summary of the argument to follow. Means your purpose of the speech or your purpose of the arguments appeal to the readers or convince the readers that one is right. Second one is the an argument. You can use examples, explanations and the evidence to support the main point of your argument. Third one is the reiterations, means summarizing. In the last you have to summarize the main point of view of your argument. Extract है, should nuclear power replace the fossil fuel power stations? So this is our discussion. Should nuclear power replace the fossil fuel power stations? Students, nuclear power or the fossil fuel power, both are the burning plants. Both are the nuclear power or the fossil fuel power station. Both are the burning plants. Mainly difference where their energy come from. Nuclear power produce heat from radioactive. अब मेन डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियर पावर और फ्यूल पावर्स में ये दोनों ही बर्निंग प्लांट्स हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे हमारे पास हीट पहुंच रही है? रेडियो एक्टिव के थ्रू, रेडियो एक्टिव मटेरियल. एंड फॉसिल फ्यूल पावर फ्रॉम कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस. ये इन्हें बर्न किया जाता है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. शुड न्यूक्लियर पावर रिप्लेस फॉसिल फ्यूल पावर्स? क्या न्यूक्लियर पावर जो नहीं है उन्हें रिप्लेस करना चाहिए फॉसिल फ्यूल पावर से? दिस इज आवर डिस्कशन. इन डिसाइडिंग whether nuclear power station should replace fossil fuel power stations, a number of argument for or against, यानी इसके फेवर में और डिसफेवर में और अगेंस्ट, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस नीड टू बी एग्जामिन्ड, यानी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को एग्जामिन्स यानी कि जांच पड़ताल की जरूरत है. As the demand for the energy increasing due to the technology becoming and the integral part of the everyday life. अब हमारी जिंदगी में जो टेक्नोलॉजीज है वो एक रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है. इंटीग्रल यानी कि नेसेसरी हमारी जिंदगी में डेली लाइफ में ये इंपॉर्टेंस है. तो वो कह रहे हैं एज दी डिमांड फॉर द एनर्जी इंक्रीजिंग. अब जो एनर्जी जो बढ़ रही है, जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं. द चॉइस ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी टू अडॉप्ट. अब ये चॉइस दी जा रही है, यहाँ पे ये चॉइसेस हैं कि विच टाइप ऑफ एनर्जी जो नहीं हमने अडॉप्ट करनी है, हमने या गवर्नमेंट ने. तो यहाँ पे द चॉइस ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी टू अडॉप्ट फॉर अ न्यू पावर स्टेशन इज द वैक्सिंग क्वेश्चन.
वैक्सिंग मीन वरीड यानी कि परेशान कौन क्वेश्चन है फॉर द गवर्नमेंट। अब कौन सी किस्म की किस टाइप की एनर्जी जो है किस टाइप का पावर स्टेशन चूज करना है गवर्नमेंट ने, न्यूक्लियर पावर स्टेशन या फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन, ये एक वैक्सिंग क्वेश्चन है फॉर द गवर्नमेंट। द आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व, अब इसमें आर्ग्यूमेंट जो शामिल है वो कौन से आर्ग्यूमेंट शामिल है, असेसिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब दोनों यानी कि दोनों एस्पेक्ट दोनों पार्ट्स हैं, नेगेटिव भी आपको इसमें बताया जा रहा है, उसके पॉजिटिव पार्ट्स के बारे में भी बताया जा रहा है, ऑफ द बोथ न्यूक्लियर जनरेटेड पावर एंड द मोर कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल। कन्वेंशनल यहाँ पर फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस को इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कन्वेंशनल पावर स्टेशन फॉसिल फ्यूल पावर को स्टेशन को कहा जा रहा है जो एक लॉन्ग टाइम से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। The argument involved assessing the positive and the negative aspects of both nuclear generated power and the more conventional fossil fuel oil or the coal fuel generated power। अब दोनों यानी फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन और द न्यूक्लियर पावर स्टेशन दोनों के नेगेटिव और द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उनके पार्ट्स के, उनके पहलू के तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। द की इश्यूज, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द की इश्यूज मीन द मेन इश्यूज, जो द मेन इश्यूज इंक्लूड द, अब वो मेन इश्यूज कौन से इंक्लूड हैं, फर्स्ट वन इज द कॉस्ट। यहाँ पे देखें की इश्यूज, मेन इशू, फर्स्ट वन वो बता रहे हैं क्या है की इशू, फर्स्ट कॉस्ट, कि कितना पैसा लग रहा है एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन को बनाने के लिए। द की इश्यूज इंक्लूड द कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज द सेफ्टी, सेकेंड वन इज द सेफ्टी इन्वॉल्व इन द जनरेटिंग पावर एज वेल एज, और इन दोनों के साथ साथ एज वेल एज द पॉल्यूशंस दैट अराइजेस फ्रॉम द चॉइस ऑफ द एनर्जी सोर्स। अब जो भी हम प्लांट हम चूज कर रहे हैं या गवर्नमेंट चूज कर रही है तो उसमें वो इन तीन चीजों को, ये मेन इश्यूज हैं जिन्हें वो अपनी चॉइस अपने इंतखाब करते हुए इन चीजों को देखेंगे। फर्स्ट वन इज द कॉस्ट, सेकेंड वन इज द सेफ्टी एंड द थर्ड वन इज द पॉल्यूशन। Paragraph change. The design and the building of any type of power stations involve a significant amount of the expenditure. First issue पर बात स्टार्ट हो गई है cost, यानी कि एक कोई सा भी आप पावर स्टेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, द डिजाइन एंड द बिल्डिंग फॉर एनी टाइप ऑफ द पावर स्टेशन, तो उसमें बहुत अच्छे खासे अमाउंट की आपको जरूरत होती है। द प्रोजेक्ट हैज टू बी कॉस्ट एफिशिएंट और इट विल कॉज एंड द इकोनॉमिक स्ट्रेन, और इससे डेफिनेटली जो नहीं है प्रेशराइज यानी कि माशी दबाव पड़ रहा है गवर्नमेंट पे कि अच्छा खासा जो भी पावर स्टेशन वो चूज करते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट रखा जाएगा वो यही है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स कितने यूज हो रहे हैं। तो डिजाइन ऑफ बिल्डिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ द पावर स्टेशंस इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। द प्रोजेक्ट हैज टू कॉस्ट एफिशिएंट और इट विल कॉज एंड द इकोनॉमिक स्ट्रेन। न्यूक्लियर पावर अब यहाँ पे बात आ गई फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की। न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू डिजाइन एंड बिल्ड, यानी कि उन्हें डिजाइन और बिल्ड करने के लिए यानी बनाने के लिए बहुत अच्छे खासे पैसे की जरूरत है, बहुत ही महंगा है। बट लेकिन द कॉस्ट ऑफ द रनिंग अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर लोअर देन द फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन। अब वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों स्टेशन में, पहले वाले स्टेशन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जब ये बन जाएगा, लेकिन फिर उसको रन करना एज कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल पावर इजी है। कौन सा इजी है? न्यूक्लियर पावर को रन करना आसान है, इसे बिल्ड करना मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, लेकिन रन करना फॉसिल फ्यूल के कंपेयर इजी है। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कैन बी जनरेटेड फास्टर विद द लेस इक्विपमेंट। अब वो ये कह रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कैन बी जनरेटेड, ज्यादा से ज्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं विद द लेस इक्विपमेंट, कम सामान के साथ, एंड फ्यूअर पीपल्स आर नीडेड टू रन द इक्विपमेंट, और कुछ ही लोगों की जरूरत होगी जो इस इक्विपमेंट को यूज करते हुए उस पावर स्टेशन को रन करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कैन बी जनरेटेड, यानी कि कम सामान के साथ बहुत ज्यादा तादाद में लार्ज अमाउंट में क्या बनाई जा रही है, एनर्जी को डेवलप किया जा रहा है। यूरेनियम,
अब ये यहाँ पे यूरेनियम क्या है, यूरेनियम एक मिनरल है, यूरेनियम द मिनरल रिफाइन, उसे रिफाइन किया जा रहा है, यानी कि जो यूरेनियम निकाला जा रहा है तो वो पहले इम्प्योर है, उसे इम्प्योरिटीज को हटा के जब उसे प्योर रिफाइन किया जाएगा तो यूरेनियम द मिनरल रिफाइन टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर फ्यूल, उस यूरेनियम से क्या बन रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल बन रहा है। इज चीप कंपेयर टू कोल एंड ऑयल, और वो क्या है, चीप है, सस्ता है, किससे सस्ता है, कोयले और ऑयल से, यहाँ पे कोल एंड ऑयल से वो क्या है, चीप है। इज चीप कंपेयर टू कोल एंड ऑयल बिकॉज इट इज अबंडेंट इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और वो आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यानी दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर आपको क्या मिल जाएगा, यूरेनियम इजीली मिल जाएगा एज कंपेयर टू कोल एंड ऑयल एंड इजीली माइंड, और उनकी आसानी से खुदाई भी की जा सकती है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ वो क्या बात कर रहे हैं, कोल एंड द ऑयल आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव, और दूसरी तरफ जो नहीं कोयला और जो ऑयल है वो दिन ब दिन वो जो नहीं उनकी मांग बढ़ती जा रही है और वो इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव, वो महंगे होते जा रहे हैं। एज रिजर्व आर बीइंग डिप्लीटिंग एंड रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द कंट्रोल प्राइस, यानी कि जखायर कम हो रहे हैं, या वो कह रहे हैं रिजर्व आर बीइंग डिप्लीटिंग, जखायर कम हो रहे हैं और वसाइल ज्यादा हो रहे हैं, यानी इसका यूज ज्यादा है और इसके जखायर कम हो रहे हैं कोल और ऑयल के, और इसकी जो ये हर जगह पे ऐसे नहीं आपको इजीली अवेल हो जाए, तो वो जब इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसकी यानी कि अभी एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है और आपको हर जगह पे मिलेगा भी नहीं, और इसकी अभी तक तो कीमत कंट्रोल में है। फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस आर एक्सपेंसिव, अब ये बताए वो तो फर्स्ट वन भी ये भी एक्सपेंसिव था, लेकिन अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन भी एक्सपेंसिव है। फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस आर एक्सपेंसिव टू रन एज द इक्विपमेंट, लेकिन वो कह रहे हैं टू रन एज द इक्विपमेंट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको चलाना उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को रन करना इजी था, लेकिन इसे बिल्ड करना एक्सपेंसिव था, लेकिन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन में ये बताया जा रहा है इसे बिल्ड करना तो एक्सपेंसिव है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसे रन करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एंड नीड कांस्टेंट मेंटेनेंस, और मुस्तकिल इसे मेंटेनेंस की जरूरत रहेगी, किसे, फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस को, बाय लार्ज वर्कफोर्स, और यहाँ पे बाय लार्ज वर्कफोर्स में यानी कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि आपके पास बंदे भी ज्यादा होने चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने सारे डिफरेंसेस आ गए इन दोनों के अंदर कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बताया जा रहा है ये एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव के साथ लेकिन इसमें लेस इक्विपमेंट यूज हो रहा है और लेस ह्यूमन रिसोर्स यूज हो रही है, कम लोगों की जरूरत है और लेस इक्विपमेंट की, यानी इसे रन करना आसान है। लेकिन द सेकेंड वन इज द फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन, ये एक्सपेंसिव तो है ही है लेकिन इसे रन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए और इसमें आपको इक्विपमेंट भी इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड इशू, सेफ्टी। अब सेफ्टी पे बात की जा रही है। Safety issues involve both nuclear and the conventional power stations continue to cause concerns around the world। अब जो सेफ्टी इश्यूज हैं वो सिर्फ एक की नहीं कि सिर्फ हम न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को ले लें या फिर फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन, वो कह रहे हैं कि इसमें दोनों ही इन्वॉल्व हैं, फॉसिल फ्यूल पावर और द कन्वेंशनल पावर स्टेशंस पूरी दुनिया ही के लिए तशवीश का बायस बने हुए हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कॉज द, अब यहाँ पे कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कॉज द मोस्ट कंसर्न्स, यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी बहुत ज्यादा तशवीश का बायस है बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव फ्यूल, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव फ्यूल की, और वो रेडियो एक्टिव फ्यूल हम कहाँ से ले रहे थे, हम इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं, यूरेनियम से, वो जो फ्यूल, तो वो कह रहे हैं उसकी जो रेजेज हैं वो डेंजरस हैं बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव फ्यूल यूज टू पावर देम, और उसे चलाने के लिए जो नहीं है क्या हमें रेडियो एक्टिव फ्यूल की जरूरत होती है, और ये भी इसलिए न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कॉज द मोस्ट कंसर्न्स। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर डिजाइन और मिनिमाइज कॉन्टेमिनेशंस फॉर द न्यूक्लियर फ्यूल। अब यहाँ पे बताया जा रहा है पोल्यूशन की बात भी आ गई, कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल, आलूदगी इसमें कम से कम है, यानी कि पोल्यूशन जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन से जो रेडियो एक्टिव रेज हैं उससे मिनिमाइज हमारे पास पोल्यूशन का पॉइंट आता है। एज लॉन्ग एज देयर आर नो एक्सीडेंट, और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि कोई ज़्यादा एक्सीडेंट्स नहीं है, और डेलिब्रेटली सॉफ्टेज, यानी कि कोई चीज़, सॉफ्टेज मीन डैमेज टू द रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव फ्यूल, और इससे ना ही कोई एक्सीडेंट कुछ इस तरह का देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देयर इज़ अ लिटिल एविडेंस, बहुत ही कम हमें ऐसे एविडेंस सबूत मिलते हैं दैट न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर अ हेल्थ रिस्क, कि ये हेल्थ के लिए डेंजरस है। कौन डेंजरस है? रेडियो एक्टिव फ्यूल की बात कर रही है, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात हो रही है कि ये हमारे बताया जा रहा है कि हेल्थ के लिए कोई खास डेंजरस नहीं है। टू दोज हु वर्क इन दैम, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, और टू द कम्युनिटी हु लिव्स अराउंड दी स्टेशंस, और जो स्टेशंस के सराउंडिंग में जो कम्युनिटी रहती है उनकी भी हेल्थ के लिए ये इतना रिस्की नहीं है। हाउएवर, नेक्स्ट पेज, however accident at the power stations on 3 miles land in the USA in 1979, अब ये पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस का बता रहे हैं कि फर्स्ट जो वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था 1979 यूएसए में 3 माइल्स आइलैंड में हुआ था। एंड द मोर रिसेंट, और द मोर रिसेंट वो कौन सा? चेर्नोबिल इन द सोवियत यूनियन इन 1986, और दूसरा बहुत ही रिसेंट जो है वो 1986 में सोवियत यूनियन चेर्नोबिल में हुआ था। हैव कॉज ग्लोबल कंसर्न्स, इंटरनेशनल लेवल पर जो नहीं है इससे लोग मुतासर हुए थे आफ्टर द चेर्नोबिल एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट के बाद में, ये हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर जब इसमें 30 पीपल्स वर नॉन टू दी हैव डाइड फ्रॉम दी थायराइड कैंसर, यानी कि थायराइड कैंसर से, यानी रेडियो एक्टिव रेस की वजह से थायराइड यानी कि गले के कैंसर से 30 लोग डेथ कर गए। द डिजीज सीम्स टू बी, और जो ये डिजीज कैसी नजर आती है? लिंक टू दी रेडियो एक्टिव, डेफिनेटली वो रेडियो एक्टिव रेस की वजह से वो उससे कनेक्टेड है। रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशंस, उसकी रेडियो एक्टिव की पॉल्यूशन की वजह से। ऑल दो एक्सीडेंट एट न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर रेयर, रेयर मीन्स वंस ब्लू इन अ मून, यानी शाज़ो नादिर। न्यूक्लियर पावर स्टेशन से शाज़ो नादिर ही कुछ एक्सीडेंट्स देखने को तो मिलते हैं, लेकिन कभी कभार, बहुत कम। द कॉन्सिक्वेंसेज आर डेडली एंड द फार रीचिंग, यानी कि बहुत ही लिमिटेशंस के अंदर हैं, और जो नहीं अगर है तो फिर डेथ, यानी कि डेथ भी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन रेयर केसेस हैं। ऑन दी अदर हैंड, अब कौन से हम सेकंड पावर स्टेशन पर आ गए। ऑन दी अदर हैंड, हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कंसर्न फॉर द पीपल वर्किंग इन एंड लिविंग नियर द कन्वेंशनल पावर स्टेशन। कन्वेंशनल पावर स्टेशन किसी को कहा जा रहा है? फॉसिल फ्यूल पावर को। और कह रहे हैं इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स तो इनके साथ भी रही, फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन के जो लोग वहाँ पर लिविंग नियर द कन्वेंशनल पावर स्टेशन, जो वहाँ पर उसके नियर रहते थे। देयर इज सम एविडेंस दैट, और इसमें कुछ एविडेंस हमें मिलते हैं। न्यूक्लियर पावर हमें लिटिल बिट एविडेंस थे, और यहाँ पर हमें सम एविडेंस मिल रहे हैं। रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज द एस्थमा, फेफड़ों के, यहाँ पे तो पहले वो कह रहे हैं कि सांस की बीमारी हो रही है, एज अ एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड इवन लंग कैंसर्स। ये देखिए कुछ डिजीजेस के नेम यहाँ पे बताए गए हैं जो किससे हो रहे हैं? फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशंस की वजह से। रेस्पिरेटरी इलनेस, second one is the asthma, and the third one is the bronchitis and even lung cancer, fourth one is the lung cancer, फेफड़ों का कैंसर। occur at a high rate, देखिए वहां पे रेयर केसेस मिल रहे थे और यहाँ पे हाई रेट में मिल रहे हैं हमें केसेस। एट अ हाई रेट इन द कम्युनिटीज लिविंग नियर अ कोल और द ऑयल पावर स्टेशंस, यानी कि हाई रेट में जो लोग कोल यानी कोयले और ऑयल की पावर स्टेशंस के इर्द गिर्द रहते हैं, सराउंडिंग में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उससे लिंक्ड हैं। इट इज़ थॉट दैट, अब ये सोचा जाता है, इट इज़ थॉट दैट इमिशन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, अब इमिशन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स मीन ईंधन को, यानी कोल और ऑयल को जो जलाने से जो इमिशंस हो रहे हैं, जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं, वो कैसे हैं? कॉज दिस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। Although there are concerns for the communities in the vicinity, vicinity means surrounding, again वही बात बताई जा रही है कि इन जो कोल को जलाने से और ऑयल को जलाने से जो हेल्थ जो इफेक्टेड हो रहे हैं लोग, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। Although there are concerns for the communities in the vicinity of these power stations, health remain are in the localized ones, और वहाँ के मकामी लोग, लोकलाइज जो वहाँ पे लोग रहते हैं और उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन एडिशन टू द हेल्थ कंसर्न्स, इन एडिशन टू द हेल्थ कंसर्न्स, सेहत के साथ साथ, अब देखिए इट कैन बी आर्ग्यूड, इस पर भी बहस की जाती है, दैट द टेक्नोलॉजी नीडेड, दैट इंपॉर्टेंट लाइन,
that the technology needed to use radioactive material in the creation of weapons does pose a threat to the world. यानी कि creation of the weapons, यानी कि weapons को जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बनाने से जो हमें कौन सी एनर्जी चाहिए, हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल हम यूज़ करते हुए जो हमें टेक्नोलॉजी दरकार है वो दुनिया के लिए एक थ्रेट है, यानी कि खतरा ही है दुनिया को उससे। आगे चल के देखिएगा, इसमें पूरा डिटेल से बताया गया। आफ्टर एटॉमिक बॉम्ब वर द ड्रॉप ऑन द हिरोशिमा एंड द नागासाकी इन जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे, द वर्ल्ड कम्युनिटी रियलाइज, तब जो इंटरनेशनली लेवल पर इस बात को रियलाइज किया गया था, द वर्ल्ड कम्युनिटी रियलाइज द डिवेस्टिंग इफेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। फिर उन्हें पता चला कि एक न्यूक्लियर वेपन्स के क्या क्या तबाहकुन असरात हो सकते हैं, कितने डिवेस्टिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी तबाहकुन असरात थे पूरी दुनिया इसके उस जगह पर जहां पर ये एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा। द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस हमारे पास आए थे, इंक्लूड ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, जिंदगी खत्म हो गई वहां से, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कंप्लीट डिस्ट्रक्ट हो गई, तबाह हो गई, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशंस ऑफ द लैंड, और वहां पर जमीन जो रही है वो भी रेडियो एक्टिव रेस की वजह से इफेक्टेड हुई थी। द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस है कि वहां पे लाइफ लॉस हो गई थी, बिल्डिंग्स डिस्ट्रक्ट हो गई थी और लैंड भी इफेक्टेड हुई थी। द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें मिले इंक्लूड द बर्थ डिफेक्ट, के काफी लंबे टाइम तक वहां पे बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुदरती तौर पर उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट नकाइस होते हैं कि वो उनकी बर्थ सही नहीं हुई हुई, इन बर्थ डिफेक्ट्स एंड द कैंसर, और सेकंड वन इज द कैंसर विच इफेक्ट्स चिल्ड्रन, जिन्होंने बच्चों को मुतासिर किया, एंड फॉलोइंग जनरेशन ऑफ पीपल, और आने वाले लोगों को। यानी कि वहां पर वो बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया था लेकिन उसके बाद जो आने वाली जनरेशन थी इवन वो भी उससे क्या हुई, इफेक्ट हुई। तो सोचिए कि ये जो एक न्यूक्लियर वेपन्स है वो एक यानी कि जगह पर गिराने से आने वाली नस्लें तक उनसे इफेक्ट हो रही है, कितना हार्मफुल और डेंजरस है। क्लियरली न्यूक्लियर वेपन्स आर अ सीरियस थ्रेट। बिल्कुल क्लियरली ये बात है कि न्यूक्लियर पावर दुनिया के लिए एक खुल्लम खुला एक थ्रेट है, एक खतरा है। बट बाय द सेम टोकन, लेकिन ये रिमाइंड करना चाहिए, कन्वेंशनल वेपन्स आर आल्सो किल एंड द मेम मिलियंस ऑफ द पीपल्स, मेम मीन डिसेबल्स, यानी कि पार्ट ऑफ बॉडी का पैरालाइज हो जाना, पार्ट ऑफ बॉडी का काम ना करना, मेम्स ऑफ पीपल्स अराउंड दी वर्ल्ड। लेकिन दूसरी तरफ कन्वेंशनल वेपन्स ऑल्सो किल्ड, उसने भी लोगों को जाने गई, एंड मेम मिलियंस, यानी कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी परमानेंटली डैमेज, तो वो काम नहीं कर रहा। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड दी वर्ल्ड, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन से भी कंप्लीटली जो नहीं है वो डिसेबल हो चुके थे। फाइनली द इशू ऑफ द पोल्यूशन, अब द थर्ड वन पोल्यूशन डिस्कस हो रहा है, पोल्यूशन। Finally, the issue of the pollution has also stimulated heated debates when choosing between the nuclear power and the fossil fuel power stations. ये भी हमारे आर्गुमेंट के अंदर हमेशा ये बहस व मुबाहिसा बहुत ही गर्मी के साथ इस बात को हमेशा से ज़ैर बहस आता रहा है। ये टॉपिक वो क्या है, पोल्यूशन। दोनों पावर स्टेशन, क्योंकि मैंने फर्स्ट शुरू में आपको बता दिया था बोथ आर द बर्निंग प्लांट, दोनों ही बर्निंग प्लांट्स हैं, तो पोल्यूशन तो डेफिनेटली होगी। तो फाइनली द इशू ऑफ द पोल्यूशन हैज आल्सो स्टिमुलेटेड हीटेड डिबेट्स व्हेन चूजिंग बिटवीन द न्यूक्लियर पावर एंड द फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन। इन एडिशन टू द हेल्थ प्रॉब्लम तो हुआ ही हुआ दोनों से। हेल्थ प्रॉब्लम एड्रेसेस अबव environmental contaminations poses serious concerns for the natural forest and the weather pattern। अब देखिए यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो उसमें जो बता रहे हैं, सबसे फर्स्ट तो नेचुरल फॉरेस्ट, यानी कि जंगलात को, यानी कि दरख्तों जो भी जंगलात हैं उनको वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और द वेदर पैटर्न यानी कि वेदर चेंजेस भी हो रहे हैं इस पोल्यूशन की वजह से। इन द केस ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस दे डू नॉट कॉज, इन द केस ऑफ द, अब बात करें फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की,
They do not cause pollutions to the environment in their day-to-day running. यानी कि एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन की पोल्यूशंस कम है. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल टू गेट एनर्जी, जो हम एनर्जी गेट कर रहे हैं, पोल्यूटेड द एयर, वो सारी कहाँ जा रही है, वो सारी एयर के अंदर शामिल है. द पार्टिकल्स दैट राइज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बर्निंग कोल, जब हम कोल को यानी कि कोयले को जब हम जला रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट, हमारी एयर के अंदर मौजूद हैं. फॉल बैक टू अर्थ, फॉल बैक टू, और वो ज़मीन पर आते हैं. कैसे ज़मीन पर आते हैं? वो तो पार्टिकल्स तो हमारे एयर में शामिल है, वो ज़मीन में कैसे आ रहे हैं? बारिश के साथ. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें? एयर के अंदर मौजूद है. और उसकी क्वालिटी क्या है कि जब वो डिजॉल्व हो जाते हैं, कैसे डिजॉल्व? पानी के साथ वो जब बारिश हो रही है तो वो डिजॉल्व होकर नीचे आ रहे हैं. और दिस कॉन्टेमिनेशन रेन इज कॉल्ड अ एसिडिक रेन. और ये कौन सी रेन कहलाती है? एसिडिक रेन कहलाती है. बिकॉज इट डैमेज द वेजिटेशन इज फॉलन. और जब ये फिर सबसे पहला जो उसका वो बताया गया यहाँ पर, इसका डिसएडवांटेज कि वेजिटेशंस जो नहीं है वो हमारी जो नहीं उससे इफेक्ट हो रही हैं. किससे? एसिडिक रेन से. जब हम कोल को बर्न कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स एयर्स में जा रहे हैं, और जब वो एयर में जा रहे हैं तो और वो बारिश के साथ नीचे आके सबसे पहले वो किसे डैमेज कर रहे हैं? वेजिटेशंस को. सेकेंड वन इज द acid rain has been responsible for the widespread destruction of the natural forest. और इसके साथ साथ ही पूरे जंगलात को वो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन द नॉर्दर्न, कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड कॉज कॉन्टेमिनेशन ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स. और इसके साथ साथ ताज़ा पानी की झीलों को, जब बारिश हो रही है वो ताज़ा पानी की झीलों के में जब वो पानी जमा हो रहा है तो वो भी कौन सा पानी है? कॉन्टेमिनेट वाटर है वो भी. द इक्वेटिक लाइफ वाटरी लाइफ, जिसमें आपके जानवर और पौधे दोनों शामिल. द इक्वेटिक लाइफ इन द फ्रेश वाटर लेक्स हैज ग्रेजुअली डिमिनिश, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है इक्वेटिक लाइफ. एनी फिश दैट सर्वाइव इज ऑफन कॉन्टामिनेटेड, अगर वो कोई ऐसी फिश बच जाती है उस पानी के अंदर, एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशंस, और वो फिर ऐसी होगी कि वो इंसान के खाने के काबिल नहीं होगी, कि वो अगर खा भी लेता है तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं. लास्ट पैराग्राफ. साइंटिस्ट बिलीव दैट एन इंक्रीजिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन द एयर फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल. अब साइंटिस्ट यहाँ पर क्या बिलीव करते हैं कि जो पार्टिकल्स हमारे एयर में शामिल हैं, कौन से एयर? जो हम कोल को जो बर्न करने से, वर्ड यूज किया गया है SMOG, स्मोक. SMOG, स्मोक. स्मोक क्या है? ये जो स्मोक हमारा धुआं प्लस फॉग, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, और ये ज्यादा डेंजरस है. फॉग हमारी जो धुंध, और ये स्मोक धुआं, दोनों जब चीजें मिल रही हैं, SMOG स्मोक, ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, और एज कम्पेयर टू ये स्मोक के ज्यादा डेंजरस है. तो साइंटिस्ट यहाँ पर साइंटिस्ट जो बिलीव कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एयर के अंदर जो फॉसिल फ्यूल कोल को बर्न करने से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे समझ लीजिए, ये अर्थ है हमारा, सही, और दिस इज सन. ये रेजेस आ रही हैं, सही है, ये अर्थ, ये सरफेस से टकरा रही हैं, ये सन रेजेस अर्थ से टकरा रही हैं, सही है, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बाहर निकल. ये डेंजरस नहीं है, नॉट डेंजरस. लेकिन अब देखें, ये रेजेस आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, नॉट डेंजरस. लेकिन जो यहां से बैंड हो रही हैं, ये ट्रैप्ड हो रही हैं, सही है, ये यहां से आई, ये ट्रैप्ड हो रही हैं. देखें, जब ये ट्रैप्ड हो रही हैं, इट्स मीन्स ये अर्थ का टेम्परेचर क्या कर रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं. जब अर्थ का टेम्परेचर यहाँ पर ये जो गैसेस बन रही हैं, यहाँ पे जो ये कहलाती हैं गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं. इसमें जो मोस्ट पाई जाने वाली गैस है CO2 है, और CH4 आई थिंक. तो यहाँ पर ये जमीन का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, जो जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है. जब ये सन की रेजेस यहाँ से आके रिफ्लेक्ट हो रही है, डेंजरस नहीं है, लेकिन जब ये ट्रैप हो जाती हैं, जब ये यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सन की रेस मिल रही है, तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो हीट बाहर नहीं निकल रही, बल्कि क्या हो रही है?
ये ज़मीन के अंदर, ये अंदर ही है, तो ये ज़मीन का टेम्परेचर को बढ़ा रही है और यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। दिस रिजल्ट इज अ ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो फिर क्या हो रहा है, विच इज राइज द टेम्परेचर, जो जमीन के जो ये देखिए टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। दिस इफेक्ट्स वेदर पैटर्न्स, और यहाँ पे वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि मौसम सारा चेंज हो रहा है। चेंजेस इन वेदर पैटर्न इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ फूड क्रॉप। अब जो नहीं फसलों पर भी जो नहीं डेफिनेटली इसका इफेक्ट आ रहा है। कैसे आएगा भाई इसका इफेक्ट, अब देखिए वेदर चेंज हो रहा है, जो हमें नीट सितंबर में जिस वेदर की अगर उसमें जून जुलाई का वेदर आ रहा है तो वो क्रॉप कैसे ग्रो करेंगी। तो सबसे पहले तो ग्रोथ ऑफ द फूड क्रॉप्स आ रहे हैं एंड एडिशंस, और इसके साथ साथ आइस कैप यहाँ पर है टॉप ऑफ द ग्लेशियर। आइस कैप कहा जा रहा है टॉप ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के ऊपर का जो हिस्सा है आइस कैप स्टार्ट मेल्टिंग, वो स्टार्ट हो रहे हैं, मेल्ट होना शुरू हो रहे हैं, कॉजिंग अ राइज इन द सी लेवल। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जब आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं तो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। एक गिलास भरा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आप बर्फ के क्यूब्स डाल दीजिए, जब बर्फ के क्यूब डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं, जब आइस कैप मेल्ट होकर मिल रहे हैं ओशियंस और सी के साथ, तो वो ओशियंस और सी क्या हो रहा है, वो तो ओवरफ्लो करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, विच इज टर्न कॉज फ्लडिंग, और उससे सैलाब आते हैं। इट हैज बीन प्रिडिक्टेड, और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, पेशेंट गोई की जा रही है, दैट सम लैंड वुड इवेंचुअली बी कवर्ड बाय दी ओशंस, और कभी ऐसा भी ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कभी एक ऐसा वक्त भी आएगा कि वहां पर सिर्फ ओशन ही ओशन आपको नजर आएगा। इन कंक्लूजन रिजल्ट फाइनली बोथ टाइप्स ऑफ द पावर स्टेशन हैव देयर एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज, यानी कि दोनों पावर स्टेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसीजन ऑन विच टाइप ऑफ द पावर स्टेशन टू यूज शुड बी केयरफुली मेड बाय द गवर्नमेंट कंसर्न। अभी ये गवर्नमेंट को हमें इन तीन चीज़ों को, फर्स्ट कॉस्ट को, सेकंड सेफ्टी को, एंड थर्ड वन इज द पॉल्यूशन, इन तीनों को नज़र में रखते हुए उसे डिसीजन लेना है कि कौन से पावर स्टेशन सही हैं। So this is all about the today's lecture. Question: which power station, nuclear power or the fossil fuel power stations, you prefer to produce energy? Give reason. यहाँ पर चॉइस है कि आप कौन से पावर स्टेशंस को जो नहीं प्रेफर कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। स्टूडेंट कंटेंट, सी द कंटेंट, पेज नंबर 3। Should nuclear power replace fossil fuel power station? Understanding the text, reading for the details. Question answers. I will explain. Question number 1. List the 3 key concerns of the discussions. इस पूरी discussions के अंदर कौन से जो नहीं 3 बातों को डिस्कस किया गया है, यानी 3 concerns किस चीज, 3 concerns जो जिन पे तशवीश का इजहार किया गया है। फर्स्ट वन इज टू कलेक्ट आर्ग्यूमेंट अबाउट द 2 पावर स्टेशन, जो से सब पहले पूरे डिस्कशन के अंदर देखा होगा कि हमने 2 पावर स्टेशन को डिस्कस किया है। सेकेंड वन इज टू डिसाइड वेदर द न्यूक्लियर पावर और द फॉसिल फ्यूल पावर इज द बेटर फॉर अस। फिर इन दोनों में से हमें चॉइस करना है कि कौन सा पावर स्टेशन बेटर है। एंड द थर्ड वन इज टू कलेक्ट लॉजिकल रीजंस अबाउट द 2 पावर स्टेशंस, और फिर उसके आपको रीजंस भी देने के कौन सा पावर स्टेशन जो आप उसे प्रेफर करोगे। Second question, which type of the power stations need a large workforce to run it? Fossil fuel power stations needs a large workforce to run it, यानी कि उसमें ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है रन करने के लिए फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन को एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। What is the acidic rain? The particles that rises into the atmosphere from the बर्निंग कोल यानी कि कोयले को जलाने से जो पार्टिकल्स एयर में मौजूद होंगे फॉल बैक टू दी अर्थ, और जो अर्थ पर वापस आएंगे विद दी रेन, बारिश के साथ जो वापस आएंगे, सच कॉन्टेमिनेटेड रेन इज कॉल्ड, और वो पोल्यूटेड रेन, दिस इज कॉल्ड अ एसिडिक रेन। रीडिंग फॉर मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 7,
Why are three discussion on the different concerns over the issues of the nuclear or the fossil fuel power stations? Why are three discussions? वो कौन सी discussions है? Different concerns over the use of the nuclear or the fossil fuel power stations. First one is to aware. क्यों की गई कि to aware the peoples about the two power stations, ताकि लोग aware हो सकें, जान सकें, both दोनों के advantage और disadvantages को देख सकें. Number 2, to check which power station is better for us, for the environment as well as for the living things, और वो कौन सी living things के लिए कौन सा ज़्यादा better है. Give 2 reason why fossil fuel power is becoming more expensive. अब वो बता रहे हैं कि fossil fuel power more expensive क्यों है. पहले भी मैं आपको पढ़ाते हुए बता चुकी हूँ कि एक तो उसका इक्विपमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एंड द सेकेंड वन इज द नीड्स कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस बाय द लार्ज वर्कफोर्स. ओके, हाउ डज बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉज द सी लेवल राइज. अब ये फॉसिल फ्यूल पावर जो नहीं है सी लेवल को इंक्रीज करने का रीजन क्यों है? ड्यू टू द बर्निंग फॉसिल फ्यूल द आइस कैप मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है. लास्ट क्वेश्चन, would you like to live near a nuclear power station or the power stations? Give the reason to your answer. आप कौन से, देखिए, would you like to live in, कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बाद आप करीब रहना पसंद करेंगे? Here my point of view, I would like to live near a nuclear power stations. Reason, there is a little evidence that nuclear power stations are the health risk, के वो हेल्थ के लिए डेंजरस हैं. और सेकंड वन, एक्सीडेंट्स एट द न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर रेयर. बहुत ही कम जो नहीं है सुनने में या देखने में आया कि वहाँ पर कुछ केसेस हों, और इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन टू द इन्वायरमेंट, और एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल के उसमें पोल्यूशन कम है. फ्रेंड्स, दिस इज today's lecture complete. I hope you got everything clearly. We will meet in the next video class. Till take care. Allah Hafiz.